Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss today is genetic modified food. Before studying the genetic modification of plants and animal to consume them in the form of food, and then we call them as genetic modified food, we should have proper knowledge what is genetic modification. uh, when you heard the word genetic modification or GM basically is the alteration of genetic material, that is DNA, in a way that would not occur outside the laboratory. So this is basically the brief definition about genetic modification. Genetic modification include a range of techniques that allow specific DNA to move with a high level of precision, usually between different organisms. Precision is required when we use the term genetic modified food. The other question rise, why do people genetic modified food? Why we genetic modified plants or animals? Actually, genetic modification enables the scientists to achieve things which cannot be done via conventional breeding, such as introducing complex characteristics without introducing unwanted one. So with genetic modification we can achieve our target results. Conventional breeding can also achieve results which genetic modification can't. The approaches are complementary. In some cases conventional breeding is better, and in some cases genetic modification is better. Then desirable traits in the plants or animals can only be done by genetic modification. Genetic modification technology does not guarantee benefits, so each case must be addressed individually. Either it is conventional breeding, either it is genetic modification technology. The other question rises, where and how are genetic modification food grow and used? Genetic modification food basically can be used worldwide due to its different benefits. So we can't deny the benefits of genetic modified food. There are some a certain reason why the people oppose the use of genetic modification. For example, some farmer, consumer, environmentalists oppose the use of genetic modification for a complex range of reasons. The following concerns are expressed by those who oppose genetic modified crops. For example, they are contamination, environmental impacts, control by big business, human health impacts, claims for elevation of poverty and hunger, and tolerance to pest resistance. ये कुछ जो रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग अपोज करते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड फूड को. तो हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लिया है कि जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है क्या, या जेनेटिक मॉडिफिकेशन है क्या, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है. जो इस लेक्चर में देखने की बात ये है कि सबसे पहले तो एक दो तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं जब भी आप जेनेटिक जीएम फूड की बात करें. एक तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म. बेसिकली ये दोनों टर्म्स हैं क्या और ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं. जब आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें कन्वेंशनल जो मेथड है, जीन जो कन्वेंशन मेथड है नई करेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस करवाने का, जैसे सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, इंड्यूस म्यूटेशन, वो सारे आ जाएंगे. लेकिन जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो उसमें आप फोकस करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे, जो आपका मेथड है सिर्फ टारगेटेड चेंज को एम्प्लॉय करने का. सो देयर ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म. बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की ही आगे से सब ब्रांच है. सो इनका जो डिफरेंस है वो बेसिकली सिर्फ मेथड्स के यूज़ पे है जो यहाँ पे दिए गए हैं. जेनेटिक मॉडिफिकेशन में सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन और इंड्यूस म्यूटेशन की बात करेंगे. लेकिन जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की आप बात करेंगे तो उसमें आप मैनिपुलेशन, दिस इज़ द मैनिपुलेशन इन्वॉल्विंग फॉरेन डीएनए बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो इस तरह की चीज़ें इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती हैं. अगर आप बड़ा फोकस होके इन पॉइंट्स को देखें तो दे आर समवट डिफरेंट. जिस तरह से टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की जा रही हैं और जिस तरह से इनका आगे से रिज़ल्ट आ रहा है. फिर देर आर सर्टन पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएम के क्या क्या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे हो सकते हैं, नुकसान. जैसे कि एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि बेटर न्यूट्रिशन क्वालिटी है, ठीक है, ज़्यादा यील्ड आएगी लेस एरिया पे, इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं, बेटर फ्लेवर है, एनहांस अरोमा है, ड्राउट रेजिस्टेंट आ जाते हैं, लेस एडिटिव्स, मोर शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट. लेकिन आप जब डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे
तो उसमें क्या आ जाता है कि टेस्ट में डिफरेंस आ सकता है। कुछ ऐसे जेनेटिक मॉडिफाइड कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हार्म बाय पेस्टिसाइड्स हो जाते हैं इन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में। जीन कुड स्प्रेड टू वीड्स, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है। मोनोपोलीज ऑफ द मैन्युफैक्चरर का ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें आ जाता है जब आप जेनेटिक मॉडिफाइड फूड की बात करते हैं। फिर डिस्प्यूट ओवर स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन आ जाता है, और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स जो है वो स्टिल अननोन है, क्योंकि अभी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इतना यूज़ नहीं किया जा रहा ख़ास तौर पे फूड में। फर्दर कुछ प्रोडक्ट्स की जैसे आप बात करेंगे, आप जीएम पपाया है, पोटैटो है, जुचीनी, सोयाबीन, राइस, टमाटोज़, ये कुछ एग्जांपल आ जाते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड फूड की। फिर फर्दर एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिकली एक जर्नल प्रोसेस है कि व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ज़्यादातर किस तरीक़ों से हो सकता है। तो एक जनरल प्रोसेस है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि क्या है कि सबसे पहले जो आपकी GI है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसे आइसोलेट करेंगे, इंसर्ट अ जीन इनटू वेक्टर, मेक कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द टारगेट होस्ट। ये दिस इज़ द जनरल पाथवे फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड which is to be employed. आगे हम बात करेंगे तो देर आर सर्टन जीन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स विच लेड अस टू द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड फूड। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल ट्रांसफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, जीन गन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो ये एक वाइड एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन यूज़ होता है। एक वाइड स्प्रेड नेचुरली अकरिंग सॉइल बैक्टीरिया है जो जिसके पास एबिलिटी है इंट्रोड्यूस कर सके न्यू जेनेटिक मटेरियल इनटू द प्लांट सेल। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करता है उसको ट्रांसफर DNA कहते हैं, और ये एक प्लास्मिड TI प्लास्मिड के ज़रिए इंट्रोड्यूस करता है। तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज़्म हो गया कि किस तरह से उसने मैनिपुलेशन को इन्वॉल्व किया, जो फॉरेन DNA इन्वॉल्व है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन को यूज़ करते हुए किस तरह से जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफ़र किया है। आगे जो अगला मेथड आ जाता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, बेसिकली मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, केमिकल मेथड है। इसमें क्या है कि प्लांट प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफ़र हो सकता है विद नेकेड DNA बाय ट्रीटमेंट विद PEG पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में होगा। तो ये केमिकल मेथड है। ज़रा केमिकली क्या होगा कि जो सेल वॉल होगी उसमें पोर्स बनेंगे और जो नेकेड DNA होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा सेल के अंदर। तो ये एक मेथड हो सकता है प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन का कि उसका प्लांट का बेसिकली जीन ट्रांसफ़र कर दिया जाए। दूसरा जो मेथड है वो इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक है। इसको कह सकते हैं कि इस टेक्निक में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूज़ की जाती हैं हाई फील्ड स्ट्रेंथ की, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो होगी परमिलाइज हो जाएगी, और जो अपटेक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग DNA वो ईजी हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के लिए अपटेक करना, इलेक्ट्रोपोरेशन। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस के ज़रिए मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे हॉल्स क्रिएट करें, जिसकी वजह से निकट DNA एज सच अपटेक हो सकता है सेल के अंदर। अब फिर फर्दर जो अगला मेथड है वो क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन का है। इसमें क्या है कि क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें बेसिकली क्या है कि जेनेटिक मॉडिफाइड इसमें जो प्लांट आते हैं इनके पास न्यू जीन होती है जो हैव नॉट बीन इंसर्टेड इन द न्यूक्लियर DNA बट इन द DNA ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, तो इसलिए इस मेथड को क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। फिर एक जो दूसरा मेथड है जो बड़ा यूज़ होता है, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहा जा सकता है जीन ट्रांसफॉर्मेशन का, जीन गन मेथड है, या इसको बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ज़्यादातर ये डिज़ाइन प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ है। इसमें क्या है कि इंजेक्ट किया जाता है सेल विद जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। फर्दर क्या है कि पे लोड इज़ एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ हैवी मेटल टंगस्टन और गोल्ड को यूज़ किया जाता है, जिनको माइक्रो प्रोजेक्टाइल किया जाता है, और वो कोट होते हैं प्लास्मिड DNA से, और फर्दर उसको सेल के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है। तो ये एक जनरल सा मैकेनिज्म हो गया जीन गन मेथड का। तो आपने सिर्फ इन मेथड्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू से अपना माइंड में रखना है, कंसेप्ट रखना है कि व्हाट आर द मेथड्स। आपको इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इन मेथड का अपने माइंड में रखें कि अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो क्या है, किस बैक्टीरिया की मदद से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है, फिजिकल मेथड है, क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और जीन गन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो आपके माइंड में इनके बारे में
एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट आर दीज मेथड ऑफ जीन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर कुछ मेथड हैं जीन ट्रांसफॉर्मेशन के जो ज़्यादातर एनिमल्स में एम्प्लॉय होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड माइक्रो इंजेक्शन कहा जाता है। माइक्रो इंजेक्शन के मेथड के बारे में ये है कि इसके बारे में रिसर्च हो रही है कि प्लांट्स में भी कहीं ना कहीं इसको सुइटेबल समझा जा रहा है यूज़ के लिए, लेकिन ज़्यादातर ये फार्म एनिमल्स में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे फार्म एनिमल्स में इंक्लूड किया। माइक्रो इंजेक्शन में क्या है कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डिलीवरिंग फॉरेन डीएनए इनटू द लिविंग सेल। वो अब लिविंग सेल क्या हो सकता है, एक सेल हो सकता है, एग हो सकता है, एम्ब्रियो ऑफ एनिमल हो सकता है, थ्रू अ ग्लास पाइपेट। One end of the glass pipette is heated until the glass becomes somewhat liquefied. It is quickly stretched, which form a very fine tip at the heated end. तो ये इसी वजह से इस मेथड को माइक्रो इंजेक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ग्लास पाइपेट की जाती है और हीट करके उसको एक इंजेक्शन की फॉर्म दी जाती है, इसलिए इसको माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहा गया फॉर द जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फिर जो दूसरा मेथड है जीन ट्रांसफ़र का, रेट्रो वायरल वेक्टर। तो जो ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं आप डेवलप टू द डेट मेथड है रेट्रोवायरल वेक्टर। इसमें क्या है कि रेट्रोवायरस वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र सिस्टम है और इसकी अनइक्वल चॉइसेस हो सकती हैं जीन ट्रांसफ़र एफिशिएंसी की। इसका मतलब ये है कि ये रेट्रोवायरल वेक्टर किसी फॉर्म एनिमल में बड़ा अच्छा जो अच्छे तरीके से जीन ट्रांसफ़र कर सकता है और किसी में नहीं कर सकता। और फर्दर ये कि डीएनए माइक्रो इंजेक्शन जिसमें वायरल जिनोम को इंटीग्रेट करना इसकी निस्बत आसान है, तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है रेट्रोवायरल वेक्टर जीन ट्रांसफ़र। इसमें बेसिकली रेट्रोवायरस वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र होगी। फिर फर्दर अगर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ तो इसमें ह्यूमन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है वो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं और ये एक बड़ा नोवल सेल बेस्ड मेथड है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जीन इन फॉर्म एनिमल्स। और करंट डेवलपमेंट जीन मॉडिफिकेशन मेथड में इसमें बड़ी ज़्यादा हो रही है कि स्टेम सेल्स को किस तरह से यूज़ किया जाए। ऐसे स्टेम सेल जिसमें प्लूरीपोटेंट है, प्लूरीपोटेंसी एबिलिटी टू डिवाइड है, उनको यूज़ किया जाए फॉर द जीन ट्रांसफॉर्मेशन इन मेथड इन फॉर्म एनिमल। ये बड़ा एक नोवल मेथड और इसमें मज़ीद रिसर्च जारी है कि इससे आने वाले टाइम में अच्छा रिजल्ट निकाला जाए। फर्दर एक मेथड है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र यूजिंग ट्रांसजेनिक सेल, जो बड़ा वाइडली यूज़ हो रहा है फॉर्म एनिमल्स में। ये इसमें बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ टेक्निक दैट कैन बी यूज टू क्रिएट अ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज और क्लोन ऑफ एन एनिमल। द एबिलिटी टू यूज सेल दैट कैन बी कल्चर इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल available to clone with as well as facilitate the ability to make transgenic cells। तो बेसिकली इसमें कोई oocyte होगा, उसमें आप न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के ज़रिए उसमें या उसमें न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के ज़रिए या एक एग होगा उसके अंदर किसी और डोनर का जो है न्यूक्लियस इंक्लूड करके एग का न्यूक्लियस रिमूव करके एक नया जो है ऑर्गेनिज्म आप डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। तो इसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ मैनिपुलेशन इन्वॉल्विंग फॉरेन डीएनए। तो ये कुछ मेथड है जीन ट्रांसफॉर्मेशन इन फॉर्म एनिमल्स। फर्दर देयर आर सर्टन रेगुलेशंस फॉर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो भी अगर इनको फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत सारे कंसर्न रेज होते हैं, जैसे जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए हैं, जिसमें कंटामिनेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर के इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस आ सकती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए कुछ रेगुलेशन भी हैं कि अगर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट हो रही है और उनको रिलीज़ किया जाए तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विच वेरीज वाइडली बिटवीन कंट्रीज। तो इनके अगर इसकी यूएसए में एक डिफरेंट रेगुलेशंस होंगी, यूरोप में डिफरेंट रेगुलेशंस होगी, हर कंट्री ने अपने कल्चर के मुताबिक जो हैं जेनेटिक मॉडिफाइड की रेगुलेशंस अडॉप्ट किए हैं। फर्दर के रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड फूड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। तो हर कंट्री की डिफरेंट रेगुलेशंस हैं। अगर आप जीएम फूड की बात करें कि उसकी इजाज़त है या नहीं। फिर फर्दर के फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी है कि फूड ड्राइव फ्रॉम द न्यू प्लांट वैराइटीज़। तो ये इनकी वैरायटी है कि नई प्लांट वैरायटी से फूड ड्राइव किया जाए तो तभी उस फूड को एक्सेप्टेबल माना जाएगा। दूसरे फूड को फूड ड्रग अथॉरिटी उसको एक्सेप्टेबल नहीं मानेगी। फूड ड्रग अथॉरिटी की ये स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी है कि फर्दर ये 1992 में इनका एक एक्ट आया हुआ, इस तरह से लेटर ऑन 2015। इसका मतलब है कि अब तक जो है इसमें डिफरेंट पॉलिसीज़ न्यू ऐड अप हो रही हैं। तो देयर आर डिफरेंट एफडीए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसीज़ इन टर्म ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड फूड।
फिर फर्दर जब जेनेटिक मॉडिफाइड फूड की अगर कोई ऐसा फूड है जो इंट्रोड्यूस हो रहा है उसमें लेबलिंग बड़ी ज़रूरी है। अगर कोई कंट्री उसको लेबल नहीं करेगी तो फिर उसकी मार्केट में कोई हैसियत नहीं रह जाएगी और उसको सेल करने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये भी एक एक्ट बनाया गया था और इसकी वजह से क्या हुआ कि 64 कंट्रीज़ रिक्वायर लेबलिंग ऑफ GMO प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस। तो ये उसके रिजल्ट में देखा गया था। तो लेबलिंग बड़ी ज़रूरी है ताकि सो दैट कंज्यूमर हैव राइट टू नो दैट व्हाट इज़ इन देयर फूड, स्पेशली द इंग्रेडिएंट दे आर लुकिंग फॉर। फिर फर्दर क्या है कि डिटेक्शन कि टेस्टिंग ऑन GMO फूड इन ए फीड इज़ रूटीनली डन यूजिंग मॉलिक्यूलर टेक्निक सच एज PCR बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इसके डिफरेंट मेथड हैं कि जिसके ज़रिए डिटेक्ट किया जा सके कि जेनेटिक मॉडिफाइड फूड या कोई ऐसी फूड या फीड में रूटीनली प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ज़ाहिर है कि जेनेटिक मॉडिफाइड को रूटीन में यूज़ किया जाए, ज़्यादा यूज़ किया जाए, तो वो भी एक हद तक नुकसानदेह हो सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड फूड। फॉर जैसे PCR की बात करें, इसको यूज़ किया गया सोयाबीन लेसिथिन जीन इन एक्सट्रैक्शन रिफाइनिंग प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया गया कि कितना जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है और उसी परसेंटेज में प्रेजेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब वाई GMO फूड टू एंड वर्ल्ड हंगर मोस्ट न्यूट्रिशन फूड बेटर टेस्ट। तो ये कुछ रीज़न हैं GMO फूड के। फिर फर्दर GMO के एनहांस शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड, बेटर मिल्क एंड मीट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं GM फूड के एक्वायर करने के लिए कि क्यों इस जेनेटिक मॉडिफाइड फूड की ज़रूरत पेश आती है जब हम बात करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन की या बाय टू यूज़ देम फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ फॉरेन DNA। तो ये कुछ स्लाइड्स हैं, बड़ी आसान है, जो जस्ट आपने सिर्फ इसे ब्रीफ रीडिंग देनी है और आप इसे ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।